So, hello guys, I'm Krati Gautam and today we are going to start with the lesson of class 10 English. The book named is Footprints Without Feet and the lesson named is A Trimp of Surgery. So, let's start the video without wasting any time. So guys, before starting the lesson, I want to give you a brief intro to the lesson and to the author. So, the lesson named is A Trimp of Surgery. What is the meaning of a trimp of surgery? It means achieving victory for the success of a surgery performed. A trimp of surgery can be said to be a real story. So, James Herriot is his pen name. The author's real name is James Alford Wright. And he was born on 3rd October 1916 and died on 23rd February 1995. He was a British veterinary surgeon and writer who used his many years of experiences as a surgeon to write a series of books, each consisting of stories about animals and their owners. So the image you are seeing on your screen is of James Herriot and he is with a dog. So this can be said that he liked animals. And now a brief intro to the lesson. So in this story we will read about a small dog named Tricky. Is pampered and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill. His mistress was a rich lady named Miss Humphrey. She loves Tricky and never refuses him anything. One day when they both were walking, the narrator means author James Herriot see them and stop to walk while talking. Mr. Herriot means narrator realizes that Tricky has been overfed. Soon Tricky stops eating and starts vomiting, and Miss Humphrey was worried and has to call Mr. Herriot for help. She does not want to send Tricky away, but only the way suggested by Mr. Herriot is to get him hospitalized for 15 days. Then we will read about how Mr. Herriot gets Tricky well again. So, now let us start with the lesson NCERT explanation. So, at first we are going to discuss about the बिफोर वी रीड दैट आप देख सकते हैं सामने ट्रिम्प ऑफ सर्जरी के नीचे लिखा हुआ है ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय his rich mistress. He falls ill and he starts vomiting and doesn't eat anything. So इसमें हमें बेसिकली ये बताया गया है कि अगर हम किसी को ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ दे तो वो उसके लिए डेंजरस हो सकती है. जैसे कि इस स्टोरी में मिस हम्फ्रे ने अपने डॉग को मतलब ओवरफेड कराती हैं एंड उसकी वजह से वो बहुत बुरी तरह बीमार पड़ जाता है. वो चल नहीं पाता, एकदम फूल के गुब्बारा जैसा हो जाता है. एंड दैट्स नॉट रियली वेरी गुड. सो नाउ लेट अस स्टार्ट. I was really worried about Tricky this time. So, Mr. Herriot जो कि हमारे ऑथर हैं, उन्होंने देखा कि ट्रिकी जो है वो अपनी ओनर मतलब उनकी जो रिच मिस्ट्रेस है ट्रिकी की जिनका नाम मिस हम्फ्रे है, उनके साथ बाहर घूम रहा था. लेकिन इस टाइम इस बार जो हमारे ऑथर हैं जेम्स हेरियोट, वो ट्रिकी के लिए बहुत ही ज़्यादा वरिड थे. उन्होंने अपनी कार बाहर निकाली और उन्होंने देखा कि ट्रिकी अपनी मिस्ट्रेस के साथ बाहर घूम रहा है और वो शॉक हो गए ट्रिकी जैसा दिख रहा था उसको देख के. मतलब ट्रिकी एक बहुत ही बड़े फूले हुए डॉग के जैसे दिख रहा था. जैसे कि अगर आपके गुब्बारे में हवा भरते तो वो फूलता ही जाता है ना, ट्रिकी भी बिल्कुल वैसा ही हो गया था. एकदम गोल, एकदम फूल के गुब्बारे जैसा हो गया था. He became hugely fat like a bloated sausage with legs at the corners. ये देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ट्रिकी बहुत मोटा हो चुका था और
उसके पैर साइड से बाहर निकल रहे थे। उसकी जो आंखें थी वो एकदम लाल हो गई थी और उसकी जो जीभ थी वो उसके मुंह के बाहर निकल रही थी। जो मिस फम्फ्रे थी उन्हें मतलब वो थोड़ा हेजिटेट हो रही थी ये सब बताने में। वो ही वॉज मिस्टर फम्फ्रे मिस्टर हेरियोट से कहती मिस फम्फ्रे मिस्टर हेरियोट से कहती हैं कि जो उनका डॉग है ट्रिकी वो लिस्टलेस है और मैं उसको कुछ भी देने से मना नहीं कर सकती हूँ। मतलब वो अपने डॉग ट्रिकी से बहुत प्यार करती थी और उसे जैसे अपने बच्चे की तरह मानती थी। तो वो कहती है कि मुझे लगता है कि ट्रिकी में अब एनर्जी नहीं है, तो मुझे वो माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है। सो मैं उसे कुछ एक्स्ट्रा मील्स दे रही हूँ बीच में, ताकि वो खुद को एकदम मतलब बिल्डअप हो सके। उसे कुछ माल्ट और कॉड लिवर ऑयल और 1 बाउल हॉर्लिक्स रात को जब वो सोता है तब। ये सब कुछ ज़्यादा नहीं है, ऐसा मिस फम्फ्रे मिस्टर हेरियोट से कहती हैं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स आई टोल्ड यू? मिस्टर हेरियोट मिस फम्फ्रे से पूछते हैं कि मैंने आपको जो मीठी चीज़ें ट्रिकी को देने के लिए मना किया था, क्या आपने वो सब रोका? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने थोड़ा ट्राई किया, लेकिन मैं ट्रिकी को ज़्यादा देर के लिए कुछ देने से मना नहीं कर सकती। वो मुझे बहुत वीक लग रहा था, इसलिए मैंने दे दिया। उसे क्रीम केक्स पसंद थे तो उन्होंने उसे क्रीम केक्स, चॉकलेट सब दे दिया। सो जो मिस्टर हेरियोट हैं ऑथर, वो दोबारा से ट्रिकी को देखते हैं और मतलब उन्हें लगता है कि हाँ, ये डॉग अब ट्रबल में है। तो ट्रिकी का सिर्फ एक ही फॉल्ट था कि वो ग्रीडी था, मतलब वो बहुत लालच करता था कि मतलब वो सोचता था कि अगर मैं आज नहीं खाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए वो सब कुछ एक बार में खा जाता था। और ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी जो कि उसे नहीं करनी चाहिए थी। बट दैट वाज अ डॉग। वो कभी खाने को मना नहीं करता था, उसको जो भी देते थे, जिस टाइम भी देते थे, वो खा लेता था। तो हमारे जो ऑथर हैं उनको लगा कि हाँ, ट्रिकी इस बार बहुत बड़ी मुसीबत में है। उन्होंने मिस फम्फ्रे से पूछा कि आप इसको एक्सरसाइज करा रही हैं? तो मिस फम्फ्रे ने कहा कि हाँ, थोड़े सा वो वॉक कर लेता है, लेकिन मतलब वो गार्डनर के साथ वॉक कर लेता है, जिसके गार्डनर का नाम है हॉटगिन, और वो लॉम्बोगो और रिंग थ्रोइंग करता है। But I tried to sound suave. Now I really mean it. ये देखिए, जैसे कि आपको इमेज में दिखाया गया है, ये डॉग कितना मोटा हो गया है। सॉरी, यस, ये डॉग कितना गोलू मोलू सा हो गया है, मोटा सा। और ये इसकी रिच मिस्ट्रेस मिस फम्फ्रे हैं और सामने मिस्टर हेरियोट हमारे ऑथर खड़े हैं। मिस्टर हेरियोट उससे कहते हैं कि अगर आपने ट्रिकी के लिए सही फूड जो है वो उसे नहीं दिया और जो वो चाहता है उसे वही दिया, वो कट ऑफ नहीं किया, या फिर उसे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं दी, तो वो सच में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा। लेकिन उसे बहुत स्ट्रिक्ट डाइट देनी है। लेकिन मिस फम्फ्रे जो थी वो उन्होंने बस मतलब मिस्टर हेरियोट से ऐसे कह दिया, ओके हाँ, मैं कर लूँगी और यू आर राइट एंड ऑल। बट वो ऐसा कुछ नहीं कर पाई क्योंकि वो अपने डॉग से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तो वो उसे मना नहीं कर पाती हैं कुछ चीज़ के लिए, एंड दैट्स नॉट वेरी गुड। सो उन्होंने मतलब प्रोग्रेस कंसर्न जो था वो मिस्टर हेरियोट का ट्रिकी के लिए बढ़ता गया। और फिर कुछ दिनों बाद मतलब वो ट्रिकी को कोट पहना के रखती थी सर्दियों में गर्म, जिससे कि उसे ठंड ना लगे, वो बीमार ना हो, मतलब एकदम अच्छे से उसकी केयर करती थी मिस फम्फ्रे। ये फिर कुछ दिन बाद
ऑथर ने जैसा बिल्कुल नहीं सोचा था कि हाँ मिस वम्फ्रे का कॉल आएगा, लेकिन मिस वम्फ्रे का कॉल आया और उन्होंने मिस्टर हैरियोट को अपने घर पे बुलाया। जब मिस्टर हैरियोट मिस वम्फ्रे के घर पहुंचे तो उन्होंने मिस वम्फ्रे ने मिस्टर हैरियोट से कहा कि ये देखिए, ये ट्रिकी जो है ये अपनी फेवरेट चीज़ें भी नहीं खा रहा, जिसको पसंद है उनको भी मना कर रहा है और बस ये उल्टियाँ ही उल्टियाँ करे जा रहे हैं, और ये पूरे टाइम बस अपने रग मतलब जो एक कह सकते हैं हम कारपेट होता है उस पर ही सोता रहता है, वहाँ से हटता हिलता नहीं है। और मैंने प्लान्स भी बनाए थे एडवांस में दैट जिससे कि ट्रिकी ठीक हो जाए, बट ऐसा होता नहीं है। तो मिस्टर हैरियोट कहते हैं कि अब ट्रिकी को ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है ये कि ट्रिकी को कुछ टाइम के लिए उसके घर से दूर मतलब बाहर कर दिया जाए। मिस वम्फ्रे को ऐसा करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन उनको ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ा क्योंकि वो ट्रिकी को ठीक देखना चाहती थी। उनका बिल्कुल मन नहीं था कि वो ट्रिकी को अपने आप से दूर भेजें, लेकिन उन्हें ट्रिकी को मिस्टर हैरियोट के साथ भेजना पड़ा जिससे कि वो ठीक हो जाए। एकदम मतलब उनकी शक्ल एकदम रोने वाली हो गई थी और उन्हें मतलब बहुत बुरी हालत हो गई थी। जो मिस वम्फ्रे के यहाँ जो सर्वेंट्स थे उन्होंने जो ट्रिकी है उसको एक ब्लैंकेट में रैप करके मिस्टर हैरियोट को दिया, और जो उनका पूरा स्टाफ था, जो मेड थी, वो सब ट्रिकी का डे बेड, ट्रिकी का नाइट बेड, ट्रिकी के फेवरेट कुशन्स, टॉयज़ और रबड़ की रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल एंड सुपर बाउल, वो सब कुछ उन्होंने मिस्टर हैरियोट की कार में रख दिया। मतलब हम कह सकते हैं कि ट्रिकी मतलब एक बहुत ही लकी डॉग था कि उसे इतनी अच्छी ओनर मिली मिस वम्फ्रे, बट उसकी लालच की वजह से उसकी आज तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, और इतना मतलब वो मोटा हो गया था कि वो चल भी नहीं पा रहा था। मिस्टर हैरियोट ने कार ड्राइव करना शुरू किया, और जैसे वो आगे गए मिस वम्फ्रे जो थी वो रोने लगी और विंडो से बाहर देखने लगी, और सबकी आंखों में आंसू थे। जो उनका स्टाफ था वो भी रो रहे थे जैसे कि ट्रिकी को हमेशा के लिए ले जा रहे हो, बट दैट वाज नॉट ट्रू। जब वो रोड पे थे तब उन्होंने देखा कि एक पैथेटिक लिटिल एनिमल है जो कि साइड में बैठा हुआ है सीट पे, जो कि ट्रिकी है। उन्होंने उसके मतलब जो सर है उस पर हाथ फिराया और कहा कि पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, मतलब उन्होंने ट्रिकी से कहा कि मैंने कहा था तुम्हारी ओनर से कि तुम्हें इतना ज़्यादा खाना ना दें, बट उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तो इसमें जब हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, अब इनको लास्ट में करेंगे हम, अभी नहीं मतलब लास्ट में करेंगे, बीच में नहीं रुक रहे। सर्जरी क्या था, जो एक हॉस्पिटल है उसका नाम था सर्जरी, मिस्टर हैरियोट के हॉस्पिटल का। तो वहाँ पे बाकी और डॉग्स भी थे, तो उन्होंने ट्रिकी को भी वहाँ पे रखा, और ट्रिकी की आंखें एकदम डल हो गई थी, और मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। एंड उन्होंने ट्रिकी को
देखा कुछ देर तक और उसे फिर इग्नोर करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने ट्रिकी के लिए एक वार्म लूज़ बॉक्स में एक बेड रेडी किया और जहाँ पे कोई और डॉग नहीं था, सिर्फ अकेला ट्रिकी था। और उन्होंने ट्रिकी को 2 दिनों के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा, जिसमें उसे कुछ खाना नहीं दिया और बस थोड़ा सा पानी दिया। जब सेकेंड डे का एंड हुआ तो ट्रिकी कुछ इंटरेस्ट दिखाने लगा अपनी सराउंडिंग्स में उसने, और जैसे जैसे थर्ड डे शुरू हुआ, मतलब जैसे जैसे तीसरा दिन शुरू हुआ, उस टाइम पे जो ट्रिकी था वो भाग के यार्ड में आ गया, बाकी डॉग्स के साथ खेलने लगा। बाकी डॉग्स के नाम इसमें आपको दे रखे हैं, जो, ग्रे हॉर्न और उसके दोस्त। जब ट्रिकी इन सब के साथ थोड़ा खेला, इधर उधर घूमा, तो मतलब ट्रिकी उनको फॉलो करने लगा था। फिर उसके अगले दिन खाने के टाइम पे मिस्टर हैरियोट ट्रिकी के सामने थे और उन्होंने देखा कि ट्राइसन जो स्लोप्ड है वो मतलब बाउल में खाना खाता है और हेडलॉन्ग जो है वो भाग के मतलब हाई स्पीड में आता है, अपने बाउल में खाना खाने लग जाता है। सारे डॉग एक दूसरे के पीछे ऐसे ही करने लगे। और लास्ट पार्ट था मील का। सॉरी गाइस, वही था, मैंने भी लोड हो रहा है। यस, तो जब सबने ख़त्म कर लिया तो ट्रिकी सबके जो मतलब शाइनी बाउल्स थे उनके आसपास जाके मतलब उनके सबके बाउल्स को देखने लगा और उसने देखा कि ये जो बाउल्स है मतलब सबको उसने थोड़ा थोड़ा चाटा, लेकिन उसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं था, थोड़ा बहुत खाना था। अगले दिन एक एक्स्ट्रा बाउल रखा था जो कि ट्रिकी के लिए था। सब उसके आसपास भागने लगे और मतलब सबने अपना अपना खाना खा लिया। तो जब उसी नेक्स्ट डे फिर जो ट्रिकी था वो भी मतलब खाने के पीछे अपने लड़ने लगा। फिर जो डॉग्स की वो गैंग थी उसका एक अनएक्सपेक्टेड मेंबर बन गया ट्रिकी। वो एक टाइगर की तरह फाइट करने लगा अपने खाने के लिए। और इसी बीच में मिस फम्फ्रे को पता चला कि उनका जो डॉग है वो थोड़ा ठीक हो गया है, तो उन्होंने अपने मतलब कुछ क्वेश्चन पूछे ट्रिकी के क्वेश्चंस को लेके, और उन्होंने ट्रिकी के लिए एक वेदर के अकॉर्डिंग एक कोट भेजा। और जो मिस्टर हैरियोट थे वो उनको बता नहीं पाए कि हाँ अभी ट्रिकी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है एंड अभी भी वो डेंजर में है, अगर उसे फिर से इतना सब कुछ दिया जाएगा तो। आप देख सकते हैं बीच वाला डॉग, ये जो अभी मैंने मार्क किया था, ये जो डॉग है ये यही है ट्रिकी। ये थोड़ा मोटा सा दिख रहा है अभी। मतलब अभी ट्रिकी मोटा था तो अभी हम उसे इतना सब नहीं दे सकते थे, लेकिन मिस फम्फ्रे को मिस्टर हैरियोट ये नहीं बता पाए। तो जो मिस फम्फ्रे हैं उन्होंने ट्रिकी के लिए राउंड फ्रेश एग्स भेजे 2 डज़न और ट्रिकी की जिससे हेल्थ बन सके, और उन्होंने ट्रिकी एग भेजे। तो अब जो हमारे ऑथर थे मिस्टर हैरियोट, वो ट्रिकी को तो वो सब दे नहीं सकते थे, तो उन्होंने उसको खुद ही खाना शुरू कर दिया। वो उन एग्स को अपनी हैप्पी डे अपने पार्टनर्स के साथ 2 एग्स ब्रेकफास्ट में खा लेते थे। और फिर उसके कुछ दिन बाद वाइन की बॉटल्स आने लगी और मतलब रियल पॉसिबिलिटीज़ थी सिचुएशन की कि ये सब हाउस होल्ड है। तो ट्रिकी को तो वो ये सब नहीं दे सकते थे,
बट मतलब उनकी मिस हम्फ्रे ने ऐसा इसलिए भेजा जैसे कि ट्रिकी का जो ब्लड है वो एनरिच हो जाए, बट ट्रिकी को मिस्टर हैरियोट नहीं दे सकते थे। तो मिस्टर हैरियोट ने लंच में वो जो 2 ग्लास ऑफ वाइन बिफोर सर्विंग द मील एंड आफ्टर सर्विंग द मील वो उसको खाने लगे, आई मीन ड्रिंक करने लगे। बट हम हार्डली बिलीव कर सकते हैं कि जब ब्रांडी आई तो मतलब फाइनल एज था ट्रिकी के कॉन्स्टिट्यूशन का, और कुछ रात और थी जब ट्रिकी उनके यहाँ रह सकता था। सो जो डे था वो डीप कंटेंट था, और उन्होंने एक्स्ट्रा एग्स खाने शुरू कर दिए मॉर्निंग में, और फिर मिड डे वाइन, और जब उन्होंने मतलब रात को डिनर करने के बाद लग्जरी ब्रांडी यूज़ करने लगे। और वो अब उनको मतलब उनकी इच्छा ऐसी थी मिस्टर हैरियोट की कि वो चाहते थे कि वो जो ट्रिकी है वो उनका परमानेंट गेस्ट बन के रहे, पर ऐसा हो नहीं सकता था क्योंकि मिस हम्फ्रे जो है वो अपने डॉग के लिए बहुत मतलब परेशान हो रही थी, एंड इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकते थे। कुछ ही मिनट्स बाद 30 फीट की एक ब्लैक कलर की ग्लैमिंग मेटल की कार वहाँ पे सर्जरी के बाहर आ गई, और उसका जैसे ही डोर खुला तो उसमें से मिस हम्फ्रे मतलब उसके अंदर बैठी हुई थी। तो उनके हाथ जो थे वो टाइटली मतलब एक मतलब जो हम कह सकते हैं कि हाथ में हाथ बांधे हुए थे उन्होंने, और उन्होंने मिस्टर हैरियोट से कहा, ओ मिस्टर हैरियोट, आपने सच में मतलब आपने सच कहा था कि ये सच में बेटर है, और ट्रिकी अब ठीक है, और मैं अब उसे अपने साथ घर ले जाती हूँ। सो वो उनके घर के गार्डन तक जो था वो मास ऑफ डॉग्स था, तो वो एक उनके आसपास घूमने लगा, लेकिन जैसे ही ट्रिकी ने अपनी ओनर को देखा वो तुरंत भागते 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 ट्रिकी मिस हम्फ्रे के पास चला गया, कार का डोर जैसे ओपन था वैसे। जब ट्रिकी मिस हम्फ्रे के पास भागते भागते आ रहा था तो उन्होंने अपने हाथ, जैसे कि हम किसी को गले लगाने के लिए अपने दोनों हाथ खोल लेते हैं, उसी तरह उन्होंने भी अपने दोनों हाथ खोल लिए जिससे कि उनका जो डॉग है वो उनके पास आ जाए, और उन्होंने कहा कि ओ अब मैं इसको अच्छे से मतलब इसकी अच्छे से केयर करूँगी इसका एंड ऑल। बट जो एक्साइटमेंट थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, उनके टॉयज़ कुशन्स कोट वो सब कुछ ले गए। बट मिस हम्फ्रे जो थी उनकी आंखों में थोड़े आंसू भी थे, एंड मिस्टर हैरियोट उन्होंने कहा कि मिस्टर हैरियोट, आपने मेरे डॉग को ठीक कर दिया, मैं आपको थैंक यू कैसे कहूँ, और ये एक ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी है, मतलब आपने जो सर्जरी ली थी उससे आपने विक्ट्री ले ली है। एंड इसी के साथ हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। सो नाउ let us summarize it in a very impressive manner. So let's start. The story starts when Miss Humphrey, a rich lady, takes her dog out for a walk. A nearby doctor who knows the lady sees the dog and was shocked when seeing the dog as it was very fat and not able to stand. The doctor, Mr. Herriot, advises Miss Humphrey to stop giving Tricky unhealthy food to eat, but she is not able to refuse him. Soon he falls sick, and Miss Humphrey thought too that Tricky was suffering from serious disease known as malnutrition. She called the doctor, Mr. Herriot, immediately. The narrator, Mr. Herriot, then somehow takes Tricky the dog to the hospital to his surgery, and Miss Humphrey is not ready to leave her dog. Then he takes the dog to the hospital to the surgery. The dog was not able to move or eat anything for the first 2 days, and on the 3rd day he looks around and whispers a bit. He wanted to go out on the 4th day and started playing with other bigger dogs when he was taken out.
He also licked the bowl of the dogs. Then his condition starts improving very fast. He started fighting with other dog for his meal. Then when this news reaches to Miss Fumfrey, she thinks that Tricky was now well and was recovering from his illness. So she uh, eggs giving eggs to Mr. Heriot for Tricky to enrich, but Mr. Heriot can't give the eggs to Tricky because he was not really very well to eat such food, so he ate that eggs with his partners at breakfast. Then after some time, Miss Fumfrey started sending bottles of wine, which was again consumed by Mr. Heriot. He used to take 2 glasses before lunch and some more while having lunch. Then she started sending the bottle of brandy for Tricky. That was the time when Mr. Heriot thought that he would really like to keep Tricky as a permanent guest in the surgery. Mr. Heriot used to be really happy someday by having 2 extra eggs every morning, the few glasses of wine in the afternoon, and closing the day by having brandy at night. But then he took a wise, honest decision and called up Miss Fumfrey, as she was really worried and on this side. Tricky was ready to be taken back home. Tricky was also very happy to see his mistress and jumped into the car. When Miss Fumfrey said that she won't be able to ever thank him for what he had done for her, that's why the surgery had been successful, as Tricky was now cured. Then नेक्स्ट अब इसमें आपके लिए कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर हेरियोट एंड मिस फम्फ्रे. So Mr. Heriot was a veterinary doctor. He was very kind with animals. When he saw Tricky condition, he was worried and warned Miss Fumfrey, the mistress of the dog, of the consequences overfeeding the dog. But she loves her dog, so she can't refuse him for anything. She admits Tricky in his clinic and help him to get back in his proper shape and is in proper condition. Then next हमारा question आ सकता है, give a character sketch of Miss Fumfrey. So Miss Fumfrey was a rich lady and a lonely lady, and she pampered her dog a lot and gave him chocolate cakes, juice, eggs, wine, etc. to eat and drink. These all things make Tricky a fatty dog. Tricky had different type of coat according to the season. She was very loving and doesn't see that her dog needs exercise also. So when Tricky falls ill, she was very worried and thought that something was very serious. She was silly but kind hearted. She cried a lot when Tricky was taken to the hospital. When Tricky was being taken away from her, and she was very happy to listen that Tricky was recovering. She was very grateful to Mr. Heriot for making Tricky healthy. So now let us start the question answers of the text. Now let me find the question answers of the text. Just a minute. So इसमें हमें स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन दिए हैं. Why is Miss Fumfrey worried about Tricky?
मिस पंफ्रे ट्रिकी के लिए वरिड क्यों थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मतलब उनका जो डॉग ट्रिकी था वो कुछ खा नहीं रहा था, सिर्फ उल्टियाँ करे जा रहा था, वो बल्कि अपने फेवरेट फूड को भी नहीं खा। तो उन्हें लग रहा था कि उनका जो डॉग है वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह बीमार है और वो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है, तो इसलिए वो उसके लिए बहुत ज़्यादा वरिड थी। What does she do to help him? Is she wise in this? उन्होंने उसको मतलब उन्होंने सोचा तो अच्छा था कि मतलब ट्रिकी को वो केक और बाकी सब चीज़ें दें, लेकिन उन सब से ट्रिकी ठीक ना होके बल्कि और ज़्यादा बीमार। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। आई होप इट्स हेल्पफुल एंड यूजफुल फॉर यू ऑल। सो please don't forget to like this video, subscribe to my channel, press the bell icon and comment it out in the comment section. Thank you once again.